पार्ट ई पंजाबी क्वालीफाइंग पेपर सिलेबस 2026। सब तो पहले जो भी अपने पी ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਚ ਪਾਰਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਾਰਟ ਬੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ। ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਧੁਨੀ ਬੋਲ, ਵਾਕ ਬੋਲ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ, ਅਰਥ ਬੋਲ। ਇਹ ਇਹਦੇ 4 ਟਾਈਪਸ ਆ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂਵ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਂਵ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਂਵ ਬੜੇ ਪੜਨਾ। ਪੜਨਾਂਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾਂਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ, ਵਿਸਮਿਕ। ਇਹ 7 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਰਥ। ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਮਾਤਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਨੋਨੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ। ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਥਾਇਕ ਸ਼ਬਦ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗੇਤਰ, ਪਿਛੇਤਰ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਅਗੇਤਰ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਛੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਕਾਰਕ, ਵਚਨ ਤੇ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਇਹ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਅੰਕ, ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ। ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਖੇਡਾਂ, ਨਾਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ ਪਾਰਟ ਏ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਕਾਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ भी काव्य। ਤੇ ਇਹ अपने 10 गुरु आ। जैसे कि आपको पहले मैंने पंजाबी का सिलेबस कवर कराया था जो कि पार्ट ए में था। अब हम पार्ट बी में करेंगे जिसमें हमारा है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और इसको समझना पड़ता है बस। जिसमें मेरा सिलेबस है रीजनिंग में पार्ट बी में फर्स्ट नंबर पे लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी।
फर्स्ट नंबर पे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग में होता है जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कैलेंडर चैप्टर, और भी चैप्टर्स आते हैं इसमें, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं जैसे बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, जैसे कि हमें प्लस माइनस मल्टीपल, ये हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। नंबर्स, मैग्नीट्यूड्स, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशन, जैसे कि डाटा एनालिसिस, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, टेबल्स, सबट्रैक्शंस। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है, जो कि आगे हम इसे अच्छी तरह से कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू, जिसमें आते हैं लॉजिकल रीजनिंग है, जो हमारे चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सेकंड में आता है कोडिंग, डिकोडिंग। थर्ड में ब्लड रिलेशंस, फोर्थ में डायरेक्शंस, फिफ्थ में पजल्स। उसके बाद एनालॉजीज एंड क्लासिफिकेशन, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, रिलेशंस, ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स। हम इसे आगे स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह क्लियर करेंगे अपने चैप्टर्स को। ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है, जिसमें आएंगे ये हमारे चैप्टर्स जो कि 14 हैं। तो हम 1 बाय 1 बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स से शुरू करेंगे। इसके आगे मैं स्टार्ट करूंगी परसेंटेज से। आपको कहीं नहीं जाना, आपने कोई भी बैच नहीं लेना है ऑफलाइन, आप सिर्फ मेरा ऑनलाइन बैच ही वाला देखिए। इसमें आपको सारा सिलेबस मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया मैथ्स में, ठीक है। तो आपको बस ये फॉलो करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है और मेरे अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो देखनी है। इससे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी और आप इनफ है। ये हमारा सिलेबस है इंग्लिश का, जिसमें हम P2+P के, SSC के, स्टेट लेवल के एग्जाम कवर करेंगे। ये हमारा सिलेबस, जिसमें आएगा सबसे पहले आएगी बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर जो बेसिक होती है, हम स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे, 0 टू हीरो बनेंगे। सभी को, कोई भी बच्चा होता है ना एवरेज होता है, कोई इंटेलिजेंट, पर नहीं, हमने स्टार्टिंग से करना है, हमने हर एक चीज कवर करनी है, हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब। थर्ड एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, सिनोनिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और हमें छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ज्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं कि नहीं इतने सारे कैसे, वो हम एक ट्रिक के जरिए याद करेंगे। नेक्स्ट है एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 9th में है करेक्शन इन सेंटेंसेस। 10th में इडियम एंड देयर मीनिंग्स। इडियम्स इजी होते हैं, होते तो बहुत, जैसे 1000-2000, बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे इतने कैसे करूंगी मैं याद। हमने बिल्कुल घबराना नहीं है, हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके अच्छी तरह बताएंगे कि आगे आपको कैसे याद रखना है, ट्रिक के जरिए बताऊंगी। और इसको 2-3 बार आप मेरे साथ याद करोगे, आप कर पाओगे। नेक्स्ट आएगा स्पेल चेक। स्पेल चेक्स मीन्स स्पेलिंग होती हैं, जैसे कि काफी सारे ट्रिकी स्पेलिंग्स हो जो कि हम नहीं याद कर सकते, कितने होते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। तो आपको इट्स नॉट ये ह्यूज लग रहा है आपको कि हाँ इतना सिलेबस कैसे कवर होगा, हम करेंगे, सो डोंट वरी। ये हमारी इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें आता है कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्टली। अगर आपको वोकैबुलरी आती हो, आप कोई भी पार्ट इजीली कवर कर सकते हो। अगर वोकैबुलरी आती होगी, इसके जरिए हम पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे तभी तो हम उसके आंसर्स का रिप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वोकैबुलरी। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वर्ड्स। 5th ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस, अनसीन पैसेजेस, जैसे कि मैंने बताया अनसीन पैसेजेस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ने हैं हमने। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आएंगे। फर्स्ट नंबर है फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब एंड इट्स एंशिएंट हिस्ट्री। सेकेंड नंबर पे है सोशल एंड कल्चर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग अफगान मुगल रूल। थर्ड पर है रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ इन पंजाब। फोर्थ नंबर है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर एंड आर्ट्स इन पंजाब, भक्ति मूवमेंट, सूफीज्म। नेक्स्ट आएगा हमारा टीचिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज एंड सेंट्स इन पंजाब।
ठीक है, ये सिलेबस जो कि हमारा पंजाब जीके का है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं अब अभी तो मैंने सिलेबस कवर कर दिया, ठीक है, अब मैं इसके आगे इसको आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमने अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको स्टेप बाय सब डिटेल में बताऊंगी। ये जैसे कि हमने नोट कर लिया है पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, सिलेबस हमने नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे फर्स्ट नंबर फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब एंड इट्स एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें है जैसे कि पहले हमारा कितना पंजाब में स्क्वायर किलोमीटर कितना फैला हुआ था, अब कितना है, इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पर आता है सोशल एंड कल्चर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग अफगान मुगल रूल। पंजाब में पहले सोशल लाइफ कैसी थी, अफगान और मुगल रूल कैसा चलता था, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है रिलीजियस इकोनॉमिक लाइफ इन पंजाब, जिसमें धर्म के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक होगा, जो कि पंजाब में इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, गरीब थी, अमीर थी, कैसी चल रही थी, उस टाइम का पीरियड कैसा चल रहा था, उसके बारे में अच्छी से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड आर्ट्स इन पंजाब। इसमें आता है कि जैसे कि जो हमारी भाषाएं हैं वो कैसे डेवलप हुई, वो कैसे आगे उसका विकास हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट होता है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट जैसे कि सूफी संत हुए, जो कावी हुए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सूफीज्म, टीचिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज एंड सेंट्स इन पंजाब, जो हमारे 10 गुरु हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गुरु नानक देव जी, जो 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी, हमने इनके जन्म स्थान, इनके अपने माँ बाप सबका नाम पढ़ेंगे, अच्छी तरह डिटेल में जाएंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, कोई स्किप मत। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी। जैसे कि आपको इसमें ज्यादातर तो क्वेश्चंस नहीं आए अभी तक, तो नहीं देखेंगे, पर फिर भी हम एक रीडिंग मारेंगे, ठीक है, जो आपने मेरे साथ में तक दिमाग में, इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में ये होगा कि आपने। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सिख रूलर्स। सिख रूलर्स में था कि कौन कौन से पंजाब में जो गुरु थे उन्होंने पंजाब पर राज किया, ठीक है, कौन कौन थे, और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट था फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ पंजाब, जो आजादी के बारे में, जो पंजाब में इस बारे में हम अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक हमारा पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडियन पॉलिटी, जो कि एम लक्ष्मीकांत की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पॉलिटी इसमें से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट इश्यूज, जो कि डेट से इम्पोर्टेंट है, इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट होगा सब डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमें 9 मंथ या 1 ईयर तक ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, हम साल तक के करंट अफेयर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आता ही है। तो आगे आगे इकोनॉमिक इश्यूज, हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जो 14वीं शताब्दी से आगे का था, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है हिस्ट्री ऑफ पंजाब इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, जो उस टाइम में हमने स्ट्रगल की थी पंजाब में, सब कुछ डिटेल में अच्छी तरह पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे स्पोर्ट्स, जो गेम्स होगी, खेल्स जो गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स बारे में। फिर नेक्स्ट होगा सिग्मा एंड लिटरेचर। ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में जैसे कि आजकल तो हर एक के पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप भी है, तो उसमें मोस्टली हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि लैपटॉप में Ctrl+C जैसे कि कॉपी के लिए यूज है, Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+Z अगर कोई बाय मिस्टेकली हमसे डिलीट हो जाएगी, Ctrl+Z कर दो तो वो चीज ऑटोमेटिकली वापस आ जाती है। तो ऐसे शॉर्टकट कीज होती है जो जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क इंटरनेट में होता है जैसे कि लैन हो गया, वैन हो गया, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट होगा यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक वर्ड। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो अच्छा ही है, बट वैसे इसलिए अच्छा है कि इसके बारे में डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है
कि कोई ऑफिस वर्क के लिए कोई लेटर लिखना हो या कुछ और चीजें होती है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में ज्यादातर तो पीपीटीज बनते हैं आजकल, जैसे बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन करते हैं +2 लेवल में बच्चों में पीपीटीज बहुत बनाई जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट आप मेरे साथ पढ़ोगे, आपको अच्छी तरह डिटेल में पता लगेगा व्हाट इज पावर पॉइंट। जैसे कि मैंने अब सारा सिलेबस कवर कर दिया है, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से एंड तक बताया। ये मेरा सिलेबस मैंने पूरा बोर्ड पर बताया आपको, होप सो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप इस वीडियो के जरिए अपना पहली बात तो सिलेबस कवर करो, दूसरी बात मेरे साथ आपने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को मैंने कवर करवाना है, आपने मेरी वीडियोस देखना है। तो काफी ऐसे लोग बच्चे होंगे जो गांव में बैठे होंगे, कहीं बहुत दूर होंगे, कोई नहीं साधन होगा, कोई व्हीकल नहीं होगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो। इसके जरिए आप अपने एग्जाम जो PSSP के एग्जाम, एक्साइज इंस्पेक्टर के है, ठीक है, SSC के है, स्टेट लेवल के होंगे, आप इसके जरिए अपना हर एक एग्जाम क्लियर, आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है, तोड़ना नहीं है। डेली मेरा यूट्यूब चैनल देखना है, ठीक है, मैं डेली वीडियो डालूंगी, आपको मुझे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अभी आप जाके शेयर करो अपने व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो इससे है कि ये सभी तक पहुंचेगी वीडियो। फर्स्टली क्लर्क का, एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम आ रहा है, आपको बस मेरा चैनल देखना है, मैं डेली करवाऊंगी, आपको फॉलो करना है, आपको डेली आपको वीडियो मिलेगी, आपको ढूंढना ही पड़ेगी, इसलिए सब्सक्राइब करो। फर्स्टली तो आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो देखा। लाइक करो, फॉलो करो मुझे, ठीक है, सब्सक्राइब करो फर्स्टली। थैंक यू सो मच।